नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मन्दाकिनी सलिल चन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमदनाद महेश्वराय मन्दारपुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भो भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। സദാശിവസമാരംഭാം ശങ്കരാചാര്യമധ്യമാം അസ്മദാചാര്യപര്യന്താം വന്ദേ ഗുരുപരമ്പരാം. സഹൃദയരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഭാരതീയ ചിന്തയും സംസ്കാരവും പൈതൃകവും പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വടകരയ്ക്കടുത്ത് മുതുവടത്തൂർ എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ ഉദയം കൊള്ളുന്ന പുസ്തക പ്രകാശന രംഗത്തെ ഒരെളിയ സംരംഭമാണ് സരോവരം ബുക്സ്. ഭക്തോത്തമനായ പ്രഹ്ലാദകുമാരൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകൾ പകർന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീ നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് പവിത്രമായ മുതുവടത്തൂർ ശ്രീ നരസിംഹമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമാണ് ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം. സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായ സർഗധനരായ പ്രതിഭാശാലികളുടെ സർഗസൃഷ്ടികൾ പലതും വെളിച്ചം കാണാതെ കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഇത്തരമൊരു സംരംഭത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പുസ്തക പ്രകാശനം ഇന്നൊരു വെല്ലുവിളിയെ നേരിടുകയാണ്. ലാഭേച്ഛ കൂടാതെ സാധാരണക്കാരായ എഴുത്തുകാരുടെ സൃഷ്ടികൾ സമൂഹത്തിന് വെളിച്ചം പകരത്തക്ക വിധത്തിൽ പ്രകാശനം ചെയ്യുകയാണ് ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. മലയാളം, സംസ്കൃതം, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങിയ വിവിധ ഭാഷകളിലെ സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ സമൂഹത്തിന് അറിവ് പകരണം എന്നൊരു ലക്ഷ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത്. എൻ്റെ മകനായ
കിരൺജിത്തിൻ്റെ പഞ്ചകൈലാസം എന്ന ഹിന്ദി കൃതിയുടെ പ്രകാശനത്തോടുകൂടി ഈ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഏറെ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ പ്രതിഭാധനരായ ക്ഷണിതാക്കളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക. ഈ മംഗളമുഹൂർത്തത്തിൽ സന്നിഹിതരായ എല്ലാ സഹൃദയരെയും വേദിയിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. നമ്മുടെ ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് അഭിവന്ദ്യനായ ഭാരതീയ ആത്മീയ നഭസിൽ തൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങളിലൂടെ സമൂഹത്തെ സുശോഭിതമാക്കുന്ന ആത്മീയ ജ്യോതിസായ ശ്രീ മധുസൂദൻ ഡാംലെ അവർകളാണ്. ബഹുമാന്യനായ അദ്ദേഹത്തെ ഈ മഹത്തായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മത്തിന് ലഭിച്ചതിൽ നമ്മൾ അതീവ കൃതാർത്ഥരാണ്. അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കിരൺജിത്തിൻ്റെ പഞ്ചകൈലാസം എന്ന കൃതിയുടെ ഔപചാരികമായ പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് വാരണാസി സർവകലാശാലയിലെ ഹിന്ദി വിഭാഗം പ്രൊഫസറും പണ്ഡിതനും ഗവേഷകനുമായ ശ്രീ അരവിന്ദ് ത്രിപാഠി അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ബഹുമാനപുരസ്സരം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പഞ്ചകൈലാസം എന്ന കൃതി സദസ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സംസ്കൃതം, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലെ പണ്ഡിതനും ഗവേഷകനും അധ്യാപകനുമായ നീരജ് ജെയിൻ അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഈ സംരംഭത്തിന് ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹവർഷം ചൊരിയുന്നത് ശ്രീ ശശികുമാർ പുറമേരിയാണ്. എഴുത്തുകാരനും പ്രഭാഷകനും അധ്യാപകനുമായ ശ്രീ ശശികുമാർ പുറമേരിയെ വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിന് ആശംസകൾ നേരുന്ന മറ്റൊരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് അധ്യാപകനും ഗവേഷകനും സാഹിത്യകാരനും കൂടിയായ ഡോക്ടർ ചേതൻ കുമാർ സുഥാർ. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഈ സംരംഭത്തിന് ആശംസകൾ നേരുന്ന മറ്റൊരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരനും അധ്യാപകനുമായ ആശിഷ് ജെയിൻ അവർകൾ. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിൽ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ധന്യമാക്കിയ എല്ലാ സുമനസ്സുകളെയും അത്യാദരപൂർവം ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ സഹൃദയരെയും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളെയും എഴുത്തുകാരെയും യുവ പ്രതിഭകളെയും ആസ്വാദകരെയും സർവോപരി എല്ലാ വന്ദ്യരായ ഗുരുനാഥന്മാരെയും അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ആശീർവാദത്തോടും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അനുവാദത്തോടും കൂടി ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മധുസൂദൻ ഡാംലെ അവർകളോട് ആദരപൂർവ്വം അപേക്ഷിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
उपस्थित सभी महानुभावों का मैं स्वागत करता हूँ। आज का दिन मेरे लिए भी बहुत आनंद का दिन है। आज के दिन एक ऐसा काम मुझे मिला है जो मैं समझता हूँ कि हमेशा से मेरे दिल में रहा है। मैं हमेशा उस मार्ग पर चला हूँ और आज इस संस्था की तरफ से जो कार्य मुझे दिया गया है वो आज आनंद का दिन है। बात यह है कि हमारे भारत का जो इतिहास है वो इतिहास बहुत परिपूर्ण है। हर क्षेत्र के अंदर भारतवर्ष ने अपना नाम किया है और काम भी किया है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है भारतवर्ष में कि जिसके ऊपर अध्ययन नहीं हुआ है, प्रयोग नहीं हुए हैं। लेकिन हमारी ये सारी धरोहर जमाने के साथ साथ, कारण कई होंगे, मैं कोई भी कारण की मीमांसा यहाँ नहीं करना चाहता इस समय पर, लेकिन वो समाज के पीछे रह गई, हमारे में से वो हटा दी गई। जिनको हम देख के चलते थे, सीखते थे, वो सारी बातें पीछे रह गई। कारण अनेक है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस देश का इतिहास नहीं है उसका वर्तमान भी नहीं है और भविष्य भी नहीं है। लेकिन ईश्वर की कृपा से, निस्सीम कृपा से भारतवर्ष में ये ईश्वरीय कार्य सालों से चल रहा है। हमारी धरोहर है, वो हमें मालूम होना चाहिए। कई बार हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं, लेकिन नई पीढ़ी को उसे आत्मसात करना बड़ा कठिन होता है। तो मन में हमेशा आता था कि भाई कोई युवा इसके लिए आ गया है। जितने युवा हिंदुस्तान में अभी है, देख रहा हूं कि वो धीरे धीरे अपनी भारत की धरोहर को समझ रहे हैं और उनके मुख से वो युवाओं से बात कर रहे हैं। गीता है, महाभारत है, रामायण है, ये सारे ग्रंथ है और इनमें से हमारा जो समाज है कैसा बढ़ता आया, कैसे समाज की व्यवस्था थी, कैसे राजा थे, क्या चलता था, ये सारा उसके अंदर अगर हमने आत्मसात किया। अभी राम है, राम की जो कहानी है जब हम पढ़ते हैं तो ही वॉज अ बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, वो बहुत अच्छे व्यवस्थापक थे। तो जितने भी हमारे महात्मा, योगीजन, ज्ञानीजन आए हैं वो बहुत बड़े व्यवस्थापक थे। और ऐसी बातें एक युवा के मुख से जाए। मेरे मित्र उन्नयन कृष्ण जी, उन्होंने एक संस्था को अभी जन्म दिया है। उस संस्था में उनके पुत्र किरणजीत जी और बहुत सारे लोग उसमें कार्यरत है। किरणजीत उनके जो पुत्र हैं वो बहुत ही उत्साही व्यक्तित्व है। हमारी संस्था से भी उनका संबंध आया था और एक अच्छे शिक्षक है। पिताजी से उन्होंने ये सारी बातें ली है और अन्य गुरुजनों से, ये मेरा पूरा विश्वास है। आगे जब इसका विमोचन की बात हुई और ये इनका जो चिन्ह है, मुद्रा है, तो ये मुद्रा जो होती है ये हमारे उद्देश्य को 100% दुनिया के सामने लाती है। मुद्रा ही जैसे शिव मुद्रा थी, हर मुद्रा में एक मुद्रांकित, यानी उनका पूरा विचार उस मुद्रा में आया है। ये जब मुद्रा मेरे सामने आई तो इसका विमोचन तो करना है। मैं पहले आपको इसका विमोचन करके आपको दिखाता हूं। इसका नाम है सरोवर। देखिए इस सरोवर के अंदर एक हंस बहुत ही भय रहित होकर और बड़े उत्साह से उसमें वो विहार कर रहा है। उसे किसी बात की चिंता नहीं है। ये सरोवर जो है ये ज्ञान का सरोवर है। अब इसकी एक बात बताऊं कि जब किरणजीत ने मुझे ये चित्र दिखाया तो मेरे बचपन की एक कहानी मुझे याद आई। बचपन में कहानी और एक छोटी सी कविता थी कि एक छोटी तलैया है और वहां पे हम 5-6 भाई लोग
रहते हैं, लेकिन उसमें से एक जो है वो दिखने में अच्छा नहीं है, कुरूप है, दूसरे भाईजन उसके साथ खेलते नहीं है, उसे बड़ा दुख होता है। वो कहीं कोने में दुबक के बैठता है, डरता है, खाता पीता भी नहीं है, क्योंकि वो लोग जो खा रहे हैं वो उसका खाना नहीं है, वो जानता है, समझता है, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं है। धीरे धीरे वो बढ़ता है आगे, और जब वो बड़ा हो जाता है, अच्छी युवा अवस्था में आ जाता है, तो तैरते तैरते अचानक स्थिर पानी में नीचे दिखता है। तो उससे क्या दिखता है? उसको उसका स्वरूप दिखता है। तब तक उसको उसका स्वरूप मालूम नहीं है, और बोलता अरे ये तो मैं इनके जैसा हूं ही नहीं, मैं तो राजहंस हूं, और मेरी ये रहने की जगह नहीं है। मानस सरोवर यही मेरी जगह है, और मैं खाता हूं केवल 20 तंतु। देखिए कितना सुंदर इसके अंदर वर्णन है। इसलिए हम सब, संस्कृत में कहते हैं ईश्वरस्य पुत्राः वयम, ऋषि पुत्राः वयम, तो हम भी वैसे ही राजहंस हैं, लेकिन हमें हमारी धरोहर न मालूम होने से हम भूल गए हैं। तो ये संस्था जो है सरोवर, इन्होंने ये बहुत ही अच्छा किया है, और इस चित्र के अंदर से ही हम समझ सकते हैं कि उनको आगे जाने में क्या करना चाहिए आगे जाने। अब ये जो संस्था है, इसने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा है कि भाई केवल कुछ प्रसिद्धि करना है, अपनी किताबों को प्रसिद्ध करना है, नाम कमाना है, पैसा कमाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो पूरी इनकी सोच है, वो सोच ऐसी है कि हम केवल मैं नहीं, यह संस्था केवल अपने और अपने लोगों की किताबों के बारे में बात नहीं करना चाहती, और ज्ञान ऐसा है कि हमारे में से किसी के भी पास नहीं है। मैं भी नहीं कहूंगा कि मेरे पास पूरा ज्ञान है, और ये हिंदुस्तान भरा पड़ा है। तो ये संस्था ऐसी आह्वान करती है कि भाई आप लोगों के पास जो भी है, आप वो ज्ञान लेके आइए, लिखिए, हम उसको प्रसिद्धि देंगे, और ये भी बहुत कम मूल्य में ये सारा काम होगा। इसके अंदर मूल्य कमाना, मुद्रा कमाना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है, किंतु हमारे मुद्रा के अंदर जो बताया गया है वो हमारा ज्ञान सबदूर देना है। हमें सबदूर इस ज्ञान का प्रचार करना है। तो मैं इनका विचार समझ पाया, और मैं अपनी तरफ से इसका विमोचन करने के बाद भी एक ही प्रार्थना करता हूँ कि जितने युवा हैं वो बाहर आए, एक दूसरे से बात करें, ज्ञान बांटे। ज्येष्ठ लोग हमारे जैसे तो लोगों को बताते ही आ रहे हैं, लेकिन कई बार एक फर्क पड़ जाता है उम्र का आज। तो ये परिस्थिति, जब ये नए लोग आते हैं बाहर, तो ये कम हो जाती दूरियां, और जब ये आपस में बात करने लगते हैं, तो फिर भारत का जो उद्देश्य है, फिर से हमारा राजहंस बनकर आगे जाने का, हमारे ज्ञान को खुद प्राप्त करने का और उसका प्रसार करने का, इसके बीच में कोई भी नहीं आ सकता है। आज मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि उन्नीकृष्णन जी, किरणजीत जी, बाकी बहुत सारे विद्वान जो बनारस से इसके अंदर सम्मिलित हुए हैं, बनारस के हैं, बाकी अन्य जगहों से आए हैं, मैं ये कहता हूँ कि ये कार्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये कार्य आगे ही बढ़ता जाएगा, और इसका लाभ भारत के सभी युवा लेंगे। धन्यवाद। पंचकेला, बहुत सुंदर। पुस्तक पंच कैलाश लेखक की स्वतंत्र रचना है, जो कि हिंदी भाषा में विरचित है। पुस्तक का प्रारंभ होता है संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध महाकाव्य कुमार संभवम के प्रथम श्लोक से। इससे यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जिस प्रकार एक पुत्र का अपनी माता के प्रति स्नेह प्रबल होता है, ठीक वैसे ही लेखक का भी प्रेम अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी परंपरा और अपनी भाषाओं के लिए भी निस्सीम और प्रबल है।
पुस्तक में कुल 7 विभाग हैं, जिसमें प्रथम विभाग हिमालय पर्वत की महिमा को प्रस्तुत करता है। दूसरे विभाग में 5 कैलाशों की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। तीसरे विभाग से लेकर अंतिम विभाग तक 5 कैलाशों का बहुत ही मनोहारी और विस्तृत वर्णन किया गया है। सहज और सरल भाषा शैली लेखक की विशेषता है। पुस्तक में सर्वत्र स्वाभाविक और सरल विवरणात्मक शैली, जो कि पाठकों को यात्रा के प्रारंभ से लेकर यात्रा संपन्न होने तक पुस्तक से जोड़े रखता है। केवल यही नहीं, पुस्तक में लेखक ने कई प्राकृतिक दृश्यों का बहुत ही मनोहारी विवरण प्रस्तुत किया है, जो कि अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। साहित्यिक भाषा के साथ साथ देशज शब्दों का तालमेल अतुलनीय है, जो कि पाठक को पुस्तक से और यात्रा से हमेशा जोड़े रखता है। पढ़ते समय पाठक कभी व्याकुल नहीं होगा और पाठक उस यात्रा को जीवंत मानकर उसमें प्रतिभाग करता है। पुस्तक पढ़ने के लिए वह हमेशा लालायित रहता है कि हम कह सकते हैं कि पुस्तक में स्वाभाविकता इतनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है कि पाठक उस कथानक को जीने लगता है। अगर हम संक्षिप्त में कहें तो पुस्तक में ना सिर्फ आध्यात्मिकता का वर्णन किया गया है, आध्यात्मिकता का वर्णन किया तो गया है, लेकिन अगर हम सिर्फ ये कहें कि केवल आध्यात्मिकता का वर्णन किया गया है तो ये ठीक नहीं होगा। पुस्तक में आध्यात्मिकता का वर्णन करने के साथ साथ लेखक ने कई साहित्यिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और पारंपरिक विविधताओं का भी समावेश इस पुस्तक में किया है। पुस्तक में इतनी जीवंतता और सरलता है कि पुस्तक एक लेख की तरह नहीं लगती है। पाठक उस पुस्तक को पढ़ता है और जीता है और वास्तविक यात्रा का आनंद भी लेता है। जो भी भक्त शारीरिक रूप से अक्षम हैं और यात्रा को संपन्न नहीं कर सकते हैं, तो इस पुस्तक के माध्यम से वे 5 कैलाशों की सुंदर और सुखद यात्रा का घर बैठे आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद। പുസ്തക പ്രസാധക രംഗത്ത് ഒരു പുതിയ സംരംഭം കൂടി, അതാണ് സരോവരം ബുക്സ്. അതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന്. സരോവരം ബുക്സ് പുറത്തിറക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പുസ്തകം കിരൺജിത്തിൻ്റെ കൈലാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ്. അത് ഇറങ്ങുന്നതാകട്ടെ ഹിന്ദിയിലും. കൈലാസം എന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രാചീന കവികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉറവ പറ്റാത്ത ഒരു സർഗാത്മകതയുടെ പ്രതീകമാണ്. അത്രയേറെ കാവ്യങ്ങളും കഥകളും ഈ കൈലാസത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൈലാസത്തിൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളും അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ. വളരെയേറെ സന്തോഷം തോന്നും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്തുകൂടി അതിനെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ. ഏതായാലും ഈ കൈലാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പുസ്തകം നമ്മൾ മലയാളത്തിലേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്.
അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഈ പുസ്തക പ്രകാശനത്തോടൊപ്പം ഈ പ്രസാധക സംഘത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനിയും ഈ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. നന്ദി. ഒരായിരം. सभी को नमस्कार। पंच कैलाश नामक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर आज ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित सभी विद्वतजन को मैं नमस्कार करता हूँ। यह पुस्तक श्रीमान किरणजीत सर द्वारा विरचित है, जो कि नाम के अनुसार ही ज्ञात है कि पंच कैलाश नाम रखा गया है इसका। ये पंच कैलाश हिमालय की अलग अलग रेंज में स्थित है, जिनमें कुछ हिमाचल प्रदेश में है और कुछ उत्तराखंड में है और एक कैलाश मानसरोवर में है। इन पंच कैलाशों में मणि महेश कैलाश, आदि कैलाश, कैलाश मानसरोवर, श्रीखंड कैलाश और किन्नर कैलाश, इस तरह से इनका विभिन्न तरह से अध्ययन करके हमारे श्रीमान श्रीयुत किरणजीत सर द्वारा यह पुस्तक विरचित है। इसके बारे में और ज़्यादा सर ही बताएंगे, लेकिन आज इस ऑनलाइन मीट में उपस्थित सभी विद्वतजनों का मैं स्वागत करता हूं, जिनमें उनके पिताश्री है जो कि श्रीमान उन्नी कृष्णन जी ए, जो कि सरोवर बुक्स के निदेशक भी है। मैं उनका इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। मैं श्रीमान मधुसूदन जी डामले, अध्यक्ष मिदम आश्रम का भी स्वागत करता हूं, जो कि इस ऑनलाइन मीट में उपस्थित है। श्रीमान अरविंद त्रिपाठी जी का मैं स्वागत करूंगा, जो वाराणसी में हिंदी के प्राध्यापक है। श्रीमान नीरज जी जैन का मैं स्वागत करूंगा, जो अभी आपको पुस्तक परिचय देंगे। श्रीमान आशीष जी जैन, जो भोपाल से है, उनका मैं स्वागत करता हूं। श्रीमान शशि पुरमेरी जी, जो मलयालम भाषा से हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रिय वरिष्ठ लेखक हो गए हैं आजकल, श्रीमान किरणजीत सर का मैं स्वागत करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने इतनी सुंदर पुस्तक तैयार की है, सुंदर पुस्तक का लेखन किया है, जिससे न केवल हिमालय में स्थित पंच कैलाश का हम परिचय प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि वहाँ पर जो पंच कैलाश है उनकी मानसिक यात्रा भी हम कर सकते हैं। किरणजीत सर शुरू से ही बहुत मेहनती रहे हैं। हम दोनों ने मिलकर एक पुस्तक तैयार की थी, कैलाश मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के रास्ते। उसमें उन्होंने आरंभिक दिनों में मलयालम की पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया था। उस अनुवाद में मैंने भी थोड़ा सहयोग किया था। मुझे सौभाग्य मिला ये, मैं उसके लिए और यह पुस्तक रचना करने के लिए श्रीमान किरणजीत सर को हृदय से धन्यवाद दूंगा और आगे भी कामना करूंगा कि वो ऐसे ही अपना लेखन कार्य जारी रखे और माँ सरस्वती के चरणों में अपने लेखन पुष्प अर्पित करते रहे। धन्यवाद। आयोजन से जुड़े समस्त विद्वत वर्ग, सुधीजन, पाठकजन को मेरा नमस्कार।
मैं आशीष जैन केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 भोपाल में हिंदी शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ और आज इस पुस्तक विमोचन के अवसर पर सर्वप्रथम तो मैं परम मित्र श्री किरणजीत शर्मा जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया अपनी बात रखने का। इसके साथ ही इस सुंदर रचना के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मित्र किरणजीत जी की यह रचना वास्तव में भक्ति, अध्यात्म और पर्यावरण और साहित्य, इन सब का एक अद्भुत संगम है जो कि हम सभी को भगवान शिव के साथ साथ साहित्यिक रसपान, अध्यात्म का आनंद, ये सब भी भरपूर मात्रा में ये रचना देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। शर्मा जी ने ये जो रचना लिखी है इसमें बहुत ही रोचक ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने आदि कैलाश, कैलाश मानसरोवर, मणिमहेश कैलाश, किन्नर कैलाश और श्रीखंड महादेव कैलाश, इन 5 कैलाश का जो विवरण इसमें प्रस्तुत किया गया है वह अद्वितीय है। साथ साथ जिस ढंग से लेखक ने प्रस्तुति दी है वह सराहनीय है और प्रशंसनीय भी है। भारतीय दर्शन में, भारतीय संस्कृति में शिव का बड़ा महत्व है, इसे कोई नहीं नकार सकता। शिव तत्व के 2 पहलू हैं, एक सृजन और एक संहार। संहार भी सृजन के लिए किया जाता है। विकास के लिए विनाश की जो बात है कि जो जीर्ण शीर्ण है, जो मुख्य धारा से हट चुका है, जो मानवता के लिए उचित नहीं है, उसका संहार होना चाहिए और फिर उसके बाद नव सृजन होना चाहिए। शिव तत्व के यही 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं जो मेरी समझ में पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ा वरदान है। कैलाश मानसरोवर या आदि कैलाश के बारे में तो सबने थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सुना होता है, लेकिन बाकी के जिन 3 कैलाश पर्वतों की, जिन कैलाशों की चर्चा इस पुस्तक में की गई है, वह निश्चित ही लेखक के परिश्रम का, उनके द्वारा किया गया जो श्रम है उसका परिणाम है जो हम तक ये चीज़ पहुंची है। श्रेष्ठ साहित्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी उपादेयता या उपयोगिता कितनी है। अब हम यदि इस रचना की बात करें, पंच कैलाश नामक इस रचना की बात करें, तो इसकी उपयोगिता सिर्फ शिव भक्तों के लिए ही नहीं है। कोई ये कह सकता है कि जो लोग वहाँ अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण या अन्य किसी कारण से नहीं जा पा रहे हैं, वे इस पुस्तक को पढ़कर इसका आनंद ले सकते हैं और साथ साथ वो अनुभूति कर सकते हैं कि वे भगवान शिव से जुड़ गए हैं, वहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन मेरी दृष्टि में जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा, इसका एक अवलोकन किया, तो मैंने पाया कि ये रचना सिर्फ शिव भक्तों के लिए ही उपयोगी नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जिसे श्रेष्ठ साहित्य से प्रेम है, जिसे पर्यावरण से प्रेम है, जिसे अपनी संस्कृति से प्रेम है, जिसे अध्यात्म से प्रेम है, जिसे शिव से प्रेम है, जिसे अपनी आत्मा से प्रेम है, जिसे मानवता से प्रेम है। हर उस व्यक्ति के लिए यह रचना उपयोगी है, क्योंकि इसमें जो पर्यावरण का, प्रकृति का जो चित्रण है, यह रचना हमें प्रकृति चित्रण का भी एक संदेश देती है। यह रचना हमें शिव की आराधना के साथ साथ हिमालय के उन अनछुए दृश्यों, उन पहलुओं की यात्रा भी कराती है
जिनके बारे में हम शायद कभी कल्पना नहीं कर सकते, या जब हम जाएं तो भी कई बातें हमसे अछूती रह जाती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में ख़ास तौर से बहुत सारा ऐसा कुछ होता है कि कई स्मृतियाँ, उन पहाड़ों का इतिहास या बहुत सारी वहाँ की किंवदंतियाँ, वहाँ की मान्यताएं, जो समूची मानवता से जुड़ी होने के बावजूद दुर्गम क्षेत्र होने के कारण वहीं तक सिमट कर रह जाती हैं, क्योंकि वे इतिहास की पहुंच से दूर हो जाती हैं। मित्र किरणजीत जी ने इन सब में उन क्षेत्रों के जो ऐतिहासिक वर्णन दिए, उन क्षेत्रों के मार्गों के जो विवरण दिए, उन सब से वो पहाड़ के कोने में छिपी हुई वो स्मृतियाँ, चाहे वो मिथकों से जुड़ी हों, चाहे वे स्मृतियाँ उस क्षेत्र के इतिहास से जुड़ी हों, पाठकों के मन में जीवंत हो जाती हैं और उस क्षेत्र से हमें एकाकार करती हैं, शिव से हमारा तादात्म्य बैठाती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात और जो मैं कहना चाहूँगा इस रचना में, जो मुझे अच्छी लगी है, कि जो लोग पहले भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर चुके होंगे, अगर वे इस रचना को पढ़ेंगे तो उन्हें महसूस होगा कि उनकी यात्रा में कुछ अधूरापन था, कुछ बातें थी जो छूट गईं, उनके जहन में, उनके ध्यान में नहीं आ पाईं, और उन्हें महसूस होगा कि इस रचना को पढ़कर, इस पुस्तक को पढ़कर उनकी वो यात्रा जो पहले अधूरी थी, जो पैरों से उन्होंने की तब भी अधूरी थी, और इस पुस्तक को पढ़कर वो यात्रा पूर्ण हो गई। ठीक वैसे ही जो इस यात्रा पर जाना चाहते हैं, उन्हें इस रचना को अवश्य पढ़ना चाहिए, ताकि वे अपनी यात्रा को पूर्णता प्रदान कर सकें। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें जो हम वहाँ देखकर भी, चूँकि हमें उसके इतिहास का ज्ञान नहीं है तो हम उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। भक्ति के साथ साथ उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना भी बहुत ज़रूरी है, प्रकृति के उस सौंदर्य को निहारना भी बहुत ज़रूरी है, हिमालय के उस दिव्य विराट दैवीय रूप को निहारना, उसको अपने भीतर आत्मसात करना और उसके महत्व को समझना, ये भी बहुत ज़रूरी है। मैंने आरंभ में एक बात की थी शिव तत्व के सृजन और संहार की, तो शिव ने अपने निवास के लिए हिमालय को ही क्यों चुना होगा, इसका भी ये कारण शायद कहीं रहा हो कि हिमालय में भी सृजन और संहार दोनों ही तत्व समाहित हैं। हिमालय ही है जो हमारी रक्षा भी करता है, प्राकृतिक आपदाओं से भी रक्षा करता है, और हमारे जो शत्रु हैं उनसे भी हमारी रक्षा करता है। और हिमालय ही है जो सृजन में भी सहायक है। जब गर्मी तप रही होती है तब हिमालय के हृदय की बर्फ़ पिघलकर ही नदियों को सदा नीरा बनाए रखती है। यह हिमालय भारतीय दर्शन में, भारतीय संस्कृति में, हर धर्म संप्रदाय में हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, पूजनीय रहा है। किसी भी दर्शन, किसी भी संस्कृति को हम देख लें भारत की, इसके साथ साथ हिमालय सबके प्रति अनेक ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। देशाटन करना हो, पर्यटन करना हो, ऊंचे पहाड़ों का मानवर्धन कर पर्वतारोहण करना हो, तो सब हम हिमालय की ओर पूरी दुनिया निहारती है। और हिमालय को, पंच कैलाश को, भगवान शिव के दर्शन को, भारतीय संस्कृति को समझने की एक नई दृष्टि हमें यह पुस्तक देती है। और इस श्रेष्ठ कृति के लिए मैं किरणजीत शर्मा जी को एक बार पुनः हृदय से बधाई देता हूँ, और मुझे अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का भी हृदय से आभारी हूँ
कि आपने मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्या महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नाकेशं दारिकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं कृष्णेशं शिवालये। सभी को प्रणाम। आदरणीय मिदम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री मधुसूदन दामले, वाराणसी के प्राध्यापक डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी, श्री नीरज जैन, डॉक्टर शशि कुमार पुरमेरी, श्री चेतन प्रकाश सुथार, श्री आशीष जैन तथा मेरे वंद्य पिता एवं निदेशक सरोवरम बुक्स श्री उन्नी कृष्णन जी, और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी सज्जनों, सभी को सादर प्रणाम। यह अत्यंत हर्ष की बात है कि आज मेरी पुस्तिका पंच कैलाश का विमोचन होने जा रहा है। साथ ही साथ सरोवरम बुक्स नामक पुस्तक प्रकाशन संस्था का भी आज श्री गणेश हो रहा है। सबसे पहले मैं अपनी पुस्तिका पंच कैलाश के बारे में कुछ शब्द बताऊं। कैलाश के बारे में संपूर्ण भारतीय जानते हैं। संपूर्ण भारत में कैलाश के बारे में सुनते सुनते ही कैलाश मानसरोवर का चित्र सभी भारतवासियों के मन में आता है। वास्तव में कैलाश मानसरोवर के अलावा भी हिमालय के पहाड़ों में 4 और कैलाश है। यह तथ्य बहुत कम लोग ही जानते हैं। इस तथ्य को भारत के नागरिकों एवं शिव भक्तों तक पहुंचाने का प्रयास इस पुस्तिका के माध्यम से किया गया है। यह है आदि कैलाश, कैलाश मानसरोवर, हिमाचल प्रदेश में स्थित मणिमहेश कैलाश, किन्नर कैलाश और श्रीकंठ महादेव कैलाश। इन कैलाशों के बारे में परिचित करवाने के साथ साथ इन कैलाशों से संबंधित विभिन्न कहानियों को, विभिन्न ऐतिहासिक तत्वों को भी उजागर करने का प्रयास हुआ है। हिमालय यात्राओं के विवरणात्मक लेखक में हिमालय सौंदर्य का अनोखा वर्णन जरूर होना ही है, उसका भी प्रयास है। हिमालय के कई प्रदेश ऐसे हैं जहां कहीं रहस्यमयी बातें होती हैं। कालिदास जैसे महानुभावों ने अपनी रचनाओं में कैलाश के बारे में विस्तार से कहा है, हिमालय के बारे में भी विस्तार से कहा है। आशा करता हूं कि पंच कैलाश के बारे में लोगों को अवगत कराने में यह पुस्तिका सफल हो जाएगी। हमारे देश में
ऐसे कई शिव भक्त हैं जो भगवान शिव के धार्मिक स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं। पंच कैलाश अत्यंत दुर्गम पथों से जाकर ही पहुंच पाएंगे, अतः सभी लोगों को वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। शारीरिक तौर पर अस्वस्थ लोगों को भी पंच कैलाश यात्रा की अनुभूति प्रदान करने हेतु भी इस पुस्तिका सहायक होगी, ऐसी मेरी आशा है। सरोवरम बुक्स एक ऐसी संस्था है, बिना लाभ की इच्छा से साहित्यिक जगत में लोगों को प्रोत्साहन देना इसका मुख्य उद्देश्य है। नए नए साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ भारतीय संस्कृति से संबंधित भारतीय इतिहास के कई ऐसे तथ्य जो हमारे सामने अभी तक नहीं आया है, उसको भी उजागर करने का प्रयास हो रहा है। आशा करता हूं कि सरोवरम बुक्स आगे भी कई ऐसी रचनाएं प्रकाशित करेंगे और भारत के साहित्य पथ में एक सुवर्ण तारका के रूप में विद्यमान होगा। आज सरोवरम बुक्स का उद्घाटन आध्यात्मिक चेतना से लोगों को उजागर करने वाले एक महान व्यक्तित्व, मिदम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री मधुसूदन दामले के कर कमलों से हुआ है। यह अत्यंत हर्ष की बात है। मैं इस अवसर पर हृदय की अनंत गहराइयों से उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। वाराणसी नगरी भगवान शिव की नगरी है। वरुणा और अस्सी नामक गंगा की दो उपनदियों के बीच बसा 84 घाटों से अनुग्रहित वाराणसी नगरी ज्ञान का प्रकाश दिलाने वाली नगरी भी है। वाराणसी नगरी में कई छात्र छात्राओं को ज्ञान की नई रोशनी प्रदान करने वाले डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी के कर कमलों से आज मेरी पुस्तिका पंच कैलाश का विमोचन हुआ है। व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी विमोचन के लिए समय निकालने के लिए डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी के प्रति मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। मेरा अनुज तथा प्रिय मित्र श्री नीरज जैन ने आज विश्व के सामने पुस्तक का परिचय किया। उन्होंने पुस्तिका के निर्माण के दौरान भी प्रूफ रीडिंग का कार्य करके मेरी मदद की थी। उनको भी इस अवसर पर आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ഡോക്ടർ ശ്രീ ശശികുമാർ പുറമേരി മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖനായ എഴുത്തുകാരനും വാഗ്മിയുമാണ്. അദ്ദേഹവും ഈ പരിപാടിക്ക് ആശംസ നേരാനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനും ഹൃദയാത്മന നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. डॉक्टर चेतन प्रकाश सुखार प्रिय मित्र और ज्येष्ठ हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य के प्रति मेरी रुचि को पहचाना और आगे बढ़ाया। उन्होंने भी आज यहाँ अनुग्रह भाषण हेतु उपस्थित थे। उनको भी मैं हृदय की भाषा में आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। श्री आशीष जैन भी ज्येष्ठ है मेरे। उन्होंने भी हिंदी साहित्य जगत में मुझे इतनी प्रेरणा प्रदान की थी
वह कभी भूल नहीं पाऊंगा। उनको भी आज इस अवसर पर धन्यवाद प्रदान करना चाहता हूं। मेरे पिताजी जो सरोवरम बुक्स के निदेशक भी हैं, वे सदा मेरे लिए प्रेरणा शक्ति के रूप में विद्यमान हैं। उनको भी इस अवसर पर धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। इसके अलावा इस पुस्तिका की सृष्टि में और प्रूफ रीडिंग में केंद्रीय विद्यालय पुदुचेरी के ग्रंथपाल श्री हरीश कुमार वर्मा जी ने भी मेरी मदद की थी। उनको भी इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूं। इस पुस्तिका को बहुत सुंदर ढंग से मुद्रण कार्य करने वाले मुंबई के रिप्रो प्रिंटर्स और उसके अधिकारियों को भी मैं इस अवसर पर धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। इस कार्यक्रम की सफलता हेतु प्रयास करने वाले सभी लोगों को मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले कई दर्शक गण हैं, कई सज्जन हैं, उनको भी मैं हृदय की भाषा में धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। धन्यवाद।